Hello everyone, I welcome you all to Gradeup IAS channel. I am Himani Suri and let's get started with today's discussion on editorial analysis. The date today is 9th of November. It is 9th of November 2020 and today we are going to discuss two articles of The Hindu. First article is based on the comparison of Election Commission of USA and India's Election Commission. So this is one article that we'll be discussing. The second article that we will be discussing is by Mr. Jairam Ramesh. He has been former environment minister during UPA government. So unka article hai that we'll be discussing how he talks about the COVID-19 and how climate change and COVID-19 together are impacting the society and environment, right? So this is the regard in which we'll be talking about. Anu Chauhan, Samriti, good afternoon. Right. So चलिए guys, आज की discussion start करते हैं. ठीक है? Just give me a moment. Right. So first article, as you can see on your screen, is relevant for your GS paper 2. Okay, this is written by Mr. Naveen Chawla. ये हमारे former Chief Election Commissioner रह चुके हैं. Okay, Head of Election Commission of India. So one article is this, and like I told you, second article by Mr. Jairam Ramesh. अभी ये राज्यसभा MP भी हैं. So this will be discussing. It talks about COVID-19, climate and carbon neutrality. Okay guys, once again before starting off, I'm saying please do subscribe to the channel and do not forget to like and share this session. ठीक है, इसको please like and share कर दो जितना ज़्यादा आप कर सकते हो. शुरू करते हैं आज का session. It says, in its functioning, US Federal Election Commission has a much narrower mandate than its Indian equivalent. What it is talking about, we will be keeping it bilingual, so I hope there will be no issues. देखो इसमें ये बात हो रही है कि बेसिकली इंडिया की जो इलेक्शन कमीशन है, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये एक ज़्यादा इंडिपेंडेंट बॉडी है और ज़्यादा पावरफुल बॉडी है एज कंपेयर टू यूएस फेडरल इलेक्शन कमीशन. सो लेट्स सी हाउ. ठीक है, देखते हैं ऐसा कैसे है. आई विल हाइड माई सेल्फ टू बी एबल टू राइट थिंग्स ओवर हियर. देखिए, so US Election Commission and Indian Election Commission, how are they different? एक तो US के Election Commission में जो members होते हैं, जो Election Commissioners होते हैं, like if there are 6 members, तो वो 3 में divided होते हैं, 3 में 3 are from Democratic Party and 3 are from Republican Party. ठीक है, so they have some पॉलिटिकल ओरिएंटेशन या फिर पॉलिटिकल इंक्लिनेशन जिसको हम कहते हैं. देन वेराज इंडिया की जो इलेक्शन कमीशन है, इट इज़ अ कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट बॉडी. आप लोग जानते हैं, इट इज़ अ कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट बॉडी, येस, नॉट बिलोंगिंग टू एनी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी. राइट, क्लियर टिल हियर? ओके, एक तो ये चीज़ है. ओवर एंड अबाव, यू नो दैट इलेक्शन डिस्प्यूट्स जो होते हैं, the election disputes, especially of general elections या जो states legislative के assembly के elections होते हैं, they are solved by, या फिर election dispute किसके पास जाते हैं? Election Commission of India के पास जाता है, not to the courts. courts के पास नहीं जाते during the elections. ठीक है, election के टाइम पे. और whereas this is not the case with US. Getting my point? So this is one thing. Okay. Fine. So this is one thing. Apart from that, before moving ahead, एक और चीज़ I would like to remind you, you should know that Election Commission of India is dealt with Article 324 to 329 in our Constitution, right? And the Election Commission of India deals with election of parliament elections, यानी कि जो आपके लोकसभा elections होते हैं, राज्यसभा elections होते हैं. ठीक है, then your presidential elections, then your vice president election and as well as legislative assemblies election. ठीक है, अनु, स्मृति, listen, all of you, आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस होते हैं, ये
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही करवाती है, नॉट द स्टेट इलेक्शन कमीशन. वी नो दैट स्टेट इलेक्शन कमीशन भी कॉन्स्टिट्यूट होती हैं, बट व्हाट आर दे रिस्पॉन्सिबल फॉर? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्शंस ऑफ लोकल बॉडीज, यानी कि जो आपकी पंचायत हो गई या फिर आपकी म्यूनिसिपैलिटीज हो गई. राइट, बी वेरी क्लियर अबाउट दिस फैक्ट. ओके, ठीक है. तो दिस वॉज अ बिट ऑफ द बेसिक्स. आगे चलते हैं बैकग्राउंड में कि आर्टिकल किस बारे में बात कर रहा है. सो द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन यूएस हैज हैड मोमेंट्स व्हेन स्टेट रिजल्ट्स वर डिक्लेयर्ड, और आपको पता है स्टिल ट्रम्प हैज बीन यू नो क्लेमिंग विक्ट्री. ट्रम्प ने रिजल्ट्स आने से पहले ही बोल दिया था दैट ही इज विक्टोरियस, और अभी भी ट्रम्प इज नॉट रेडी टू अग्री टू द रिजल्ट्स. राइट, सो दिस इज वन रीजन. एंड इन ऑल दिस मेस which has been seen in US elections, इसमें कहीं भी किसी ने भी ये बात नहीं कही कि we will take this issue or we will drag this issue to US Federal Election Commission. In fact, so much so कि आपने ट्रम्प को भी यही कहते हुए सुना होगा that he will take the issue to US Supreme Court. He did not say that he will take the issue to Federal Election Commission, है ना? Which says that Federal Election Commission in US does not have as much as power as India's Election Commission of India has. Okay, so this is one thing. Yeah, in India our constitutional fathers had debated in Constitutional Assembly about necessity of the powers. That is, why are the powers required for Election Commission? देखो, India is a very diverse nation. Yes, we understand that. And every other day, हर थोड़े दिन बाद, हर कुछ दिन बाद इंडिया में इलेक्शंस होते रहते हैं. You know, we recently had the बिहार इलेक्शंस का इशू चल रहा है, और देन वी हैव अभी उससे पहले कर्नाटका इलेक्शंस हुए, महाराष्ट्र इलेक्शंस कुछ टाइम पहले हुए थे. राइट, सो एवरी नाउ एंड देन इलेक्शंस, अभी अपकमिंग वेस्ट बंगाल की बात हो रही है, तो एवरी नाउ एंड देन सम और द अदर प्लेस इलेक्शंस आर हैपनिंग. तो नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग कि अब देखो हर टाइम कहीं ना कहीं इलेक्शन हो रहे हैं इंडिया में, और इन मिड ऑफ दिस ड्यूरिंग द इलेक्शन की बात कर रही हूँ, जब प्रॉपर कैंपेनिंग चल रही है और फाइनली कैंपेनिंग के बाद जब इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होता है, वोटिंग स्टार्ट होती है, तब अब आप सोचो, तब कोई पॉलिटिकल लीडर या पॉलिटिकल पार्टी व्हाट दे डू, दे यू नो गो टू द कोर्ट एंड दे से दैट हम तो इलेक्शंस को मान नहीं रहे, हम तो इलेक्शन प्रोसीजर को, या फिर हम प्रोसीजर नहीं तो इलेक्शन रिजल्ट्स को हम नहीं मान रहे. ओके, व्हाट इफ दे गो एंड डू दिस, द होल इलेक्शन प्रोसेस विल गेट डिलेड. गेटिंग माई पॉइंट? ये होगा, ठीक है. तो that is why the constitutional leaders, यानी कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लीडर्स थे, they made sure one thing कि कोर्ट्स की इंटरफेरेंस ना हो इलेक्शन कमीशन के प्रोसेस में. जो भी इलेक्शन रिलेटेड डिस्प्यूट होगा वो कोर्ट्स के पास ना जाके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जाएगा. ठीक है, तो दिस इज वन थिंग दैट यू हैव टू मेक श्योर दैट यू नो. ओके, one more thing that writer has highlighted because he has been the former election commissioner. तो उन्होंने highlight किया है कि election commission of India is custodian of electoral roll. All matters related to roll updated which fall under election commission of India's domain. ठीक है, so it has so vast power, even higher judiciary does not interfere during the course of the election process. Okay. So अब यहाँ पे थोड़ा सा और कंपैरिजन करते हैं, कुछ और कंपैरिजन करते हैं. राइटर ही सेज दैट Federal Election Commission, although we say that USA is the oldest democracy, but still the Federal Election Commission opened its doors in 1975. Okay, when finally it started functioning in 1975, and over and above the Federal Election Commission, like it has 6 commissioners. It is written over here, it has 6 commissioners, और जैसे मैंने आपको बताया that these 6 have half of them belonging to रिपब्लिकन पार्टी एंड हाफ ऑफ देम बिलोंगिंग टू डेमोक्रेटिक पार्टी. सो ये तो बिल्कुल भी चीज इंडिया में पॉसिबल ही नहीं हो सकती दैट इलेक्शन कमिश्नर्स बिलोंग टू सम पॉलिटिकल पार्टी. इफ इट इज देयर इन इंडिया तो बिल्कुल इंडिपेंडेंटली इलेक्शन कमीशन काम नहीं कर पाएगी. येस, वी अंडरस्टैंड दैट. सो दिस इज वन फैलेसी, और व्हाट इफ वी डू नॉट कॉल इट फैलेसी, इट वुड बी बेटर टू से कि दिस मॉडल डज नॉट वर्क फॉर इंडिया. ओके, सो ओवर एंड अबव राइटर इज सेइंग कि यूएस में इन दिस क्रूशल टाइम ऑफ इलेक्शंस, आपको पता है वहाँ पे अभी कितने टाइम से, पिछले 1 साल से इलेक्शंस जो भी वट एवर स्टेप्स वर बीइंग टेकन बाय ट्रम्प, वट एवर वॉज बीइंग डन बाय ट्रम्प, वो सिर्फ इलेक्शन ओरिएंटेड ही हो रहा था. इवन इन दिस टाइम सम ऑफ द
पोस्ट्स वर एम्प्टी, यानी कि जो इलेक्शन कमीशन है, फेडरल इलेक्शन कमीशन, उसमें मेंबर्स ही नहीं है, देवर वैकेंसीज. अब वैकेंसीज होंगी तो क्या होता है, वी नो लाइक वेन एवर देयर वैकेंसीज देयर इज पेंडिंग केसेस, पेंडेंसी होती है, पेंडेंसी बहुत बढ़ जाती है. तो यही प्रॉब्लम रही यूएस में भी. इनफैक्ट द कमीशन was hardly able to function due to the vacancies, due to which they had so many pending cases. Okay, and from May to July they hardly came up with any order. You know, if we compare this to Election Commission of India, अगर उससे कंपेयर करते हैं, आपको पता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बहुत ही प्रोएक्टिव बॉडी है, ठीक है. इट एक्चुअली यू नो स्टिक्स टू द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जिसको हम कहते हैं. इट स्टिक्स टू द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट. इट इंश्योर्स कि वो फॉलो किया जाए. रिसेंटली जैसे अभी कमलनाथ जी को ही वॉज द स्टेटस ऑफ स्टार कैंपेनर वॉज रिमूव्ड, ठीक है. तो ऐसी चीजें कुछ ना कुछ इंडिया की जो इलेक्शन कमीशन है बहुत ही प्रोएक्टिवली करती रहती है, विच इज नॉट सीन विद द केस ऑफ यूएस फेडरल कमीशन, फेडरल इलेक्शन कमीशन. ओके, एंड पेंडेंसी की तो हमने बात करी ली, दैट ड्यू टू वैकेंसीज देयर इज लॉट ऑफ पेंडेंसी. See, it is also said over here that President Trump has not mentioned even once about appealing to the Federal Election Commission, but only to US Supreme Court. Okay, then, so this is why हमने बात कर लिया कि constitutional fathers made sure that issues of election dispute should not go to the court because they will impede the process and delay the election results. तो ये भी हमने देख लिया, which is not the case with US. So all these points we have seen are good points of India's election commission as compared to and the loopholes of US federal commission, ठीक है. Okay, तो अब हमने अपने good points तो देख लिए. Now let's see some things that we need to learn from US election commission. Okay, yeah. So what is one thing that we need to learn from US election commission is that in US they have a larger time period. लार्जर टाइम पीरियड एज इन उनको ज्यादा टाइम दिया जाता है अपने वोट्स कास्ट करने के लिए. एंड इस बार बहुत सारे वोट्स जो हैं उनके दे हैव बीन कास्टेड बाय पोस्टल बैलेटिंग. दे हैव यूज्ड पोस्टल बैलेटिंग सिस्टम इन देयर इलेक्शन. व्हाट इज पोस्टल बैलेटिंग सिस्टम? लेट्स सी. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू टेक द केस ऑफ इंडिया, पोस्टल बैलेट इंडिया में कहाँ कहाँ है तो ये देखते हैं. इसमें क्या होता है, बैलेट पेपर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रॉनिकली एंड रिटर्न्ड टू द इलेक्शन ऑफिसर. ओके, so what happens in case of India where all is postal ballot applied. postal ballot कहाँ पे applied है इंडिया के केस में? जो सर्विस वोटर्स हैं, यानी कि जो आर्म फोर्सेस हैं, ठीक है, जो आर्म्ड पर्सनल हैं, उनको पोस्टल बैलेट की फैसिलिटी है. और वोटर जो इलेक्शन ड्यूटी पे हैं उनको पोस्टल बैलेट की फैसिलिटी है. वोटर्स अबव 80 ईयर्स ऑफ एज और PWD, उनको पोस्टल बैलेट की फैसिलिटी है इंडिया में, बट नॉट ऑल. ओके, एंड वोटर्स अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन. आपको पता है प्रिवेंटिव डिटेंशन का भी प्रोविजन है हमारी डिटेंशन में, ठीक है. तो इन सबको पोस्टल बैलेट की फैसिलिटी दी जाती है इंडिया में, बट नॉट ऑल ऑफ अस, नॉट ऑल द सिटीजंस, विच इज अनलाइक इन केस ऑफ यूएस, क्योंकि यूएस में अभी कंप्लीटली पोस्टल बैलेट यूज हुआ है. राइट, वी नो दैट. अभी आपको आई होप समझ आ गया पोस्टल बैलेट होता क्या है. इसमें आपको जैसे आपको ईमेल पे आ जाएगा बैलेट पेपर, ओके, यू कास्ट योर वोट, आप टिक मार्क लगाओ या फिर you mention करो that who do you support and you post it, ठीक है. then you post it to the election officers, okay, and they collect and from their posts they find out that what is the majority. okay, so although इसके अपने loopholes हैं, इसके implementation में अपने loopholes हैं, that's another thing to see, but यहाँ पे writer कह रहे हैं कि India has to learn this thing. India would take this lesson of postal balloting because in 2016 US election almost a quarter of votes counted arose from postal and early balloting. और इस बार भी हमने देखा कि there was a huge numbers ज़्यादा थे. इंडिया में हम देखते हैं कि बहुत ही कम परसेंटेज होता है वोटर्स का. ओके, नॉट 100% ऑफ पीपल वोट, कभी भी ऐसा नहीं हुआ. ओके, सो यही चीज यूएस में देखी गई दैट numbers have increased due to postal balloting, and this is one lesson that we can learn from them. okay, ये सिर्फ आर्मी पर्सनल और इन सबको ना देके बाकी सबको भी ये वाली फैसिलिटी देनी चाहिए. दिस इज व्हाट राइटर इज सेइंग, बिकॉज स्पेशली इन केस ऑफ पैंडेमिक, यू नो, इट इज बेटर टू प्रिवेंट पीपल टू go to the polling booths and gather over there and cast their votes. Instead they can cast their votes using the postal ballot system. Okay, then so conclusion में writer यही कहते हैं finally that ever since the first election in 1950s, आपको पता है जब इलेक्शन कमीशन एक्चुअली एस्टैब्लिश हुआ था 1950 में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाज सेट अप इन 1915, एस्टैब्लिश इन 1915.
आफ्टर दैट इट इज नॉट बीन क्वेश्चन, बेसिकली द रिजल्ट्स ऑफ द इलेक्शंस, क्वेश्चन बहुत बार किया हुआ है लेकिन जो रिजल्ट्स हैं इलेक्शन के उसको ऐसा क्वेश्चन नहीं किया गया है, बिकॉज इफ यू सी द केस ऑफ यूएस और इफ यू सी द केस ऑफ अदर कंट्रीज, so many sections of society which belong to the opposition party or which belong to the party which has not won the elections. ठीक है, तो ये सेक्शन ऑफ सोसाइटी क्या करते हैं, जो पार्टी नहीं जीती इलेक्शन वो या तो धरने में बैठ जाते हैं या तो वो प्रोटेस्ट करते हैं. ओके, तो इससे क्या होता है, व्हाट हैपेंस विद दिस, द सैंक्टिटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ दैट कंट्री इज हार्म्ड. ठीक है, क्योंकि उस पे इलेक्शन कमीशन पे क्वेश्चंस उठते हैं. जैसे अभी ट्रम्प कह रहे हैं कि कुछ गलत रॉन्ग प्रैक्टिसेस हैव बीन यूज्ड इन द इलेक्शन और व्हाटएवर. ठीक है, बट दिस हैज नॉट बीन द केस विद इंडियाज इलेक्शन कमीशन. यहाँ पे राइटर कह रहे हैं the losers and winners both have accepted the results declared by the Election Commission of India, and it has been in graceful and smooth manner. ठीक है, although EVM पे बहुत बार क्वेश्चंस उठे हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स जो हैं इन पे क्वेश्चंस उठे हैं. It has been said that EVMs there is some mischief is being done with regard to EVMs, but कभी भी रिजल्ट्स पे क्वेश्चंस नहीं उठे हैं, which shows the sanctity of Election Commission of India as an independent body, and which also takes us to the idea that we need to empower it more and we need to strengthen it more probably. Okay, ठीक है, तो अब आगे चलते हैं. नेक्स्ट आर्टिकल कोविड-19 रिलेटेड आर्टिकल है, जैसे मैंने आपको बताया, बाय मिस्टर जयराम रमेश. तो लेट्स सी दिस आर्टिकल. ओके, so basically this article talks about, there are a few things that the writer is saying. पहले तो स्टार्ट वो इस बात से करते हैं दैट इन जीडीपी वी हैव ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. आई होप यू नो व्हाट इज जीडीपी. तो उससे वी हैव टू एंश्योर दैट ग्रॉस शुड बी ग्रीन. लव कुमार, मैं 2 PM आती हूँ. ओके लव, आपको समझ आ रहा ना? ठीक है, ओके. सो देखो, इसमें राइटर कहते हैं कि व्हेन इन पास्ट, जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वी डिवाइड द टाइम्स. ठीक है, हम टाइमलाइन को डिवाइड करते हैं बिफोर कॉमन एरा, BC-AD जैसे करते थे, या फिर अब कहते हैं BCE और CE, है ना. पहले कहते थे BC बिफोर क्राइस्ट एंड AD, बट नाउ इट इज सेड BCE बिफोर कॉमन एरा एंड CE. तो राइटर कह रहे हैं दैट फ्रॉम 2020 प्रोबेबली इस चीज को हम कैसे देखेंगे, बिफोर कोविड एपिडेमिक एंड after COVID epidemic. This is what writer is starting off his article with. ठीक है, जयराम रमेश. ओके, तो यहाँ पे ये सब बातें क्यों कह रहे हैं राइटर, बिकॉज what is the core of the article? Core of the article is he is focusing on कि कहीं ना कहीं हमें ये चीज को समझने की जरूरत है that economic growth is impacting the ecology highly. ठीक है, इकोलॉजी पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा है, और जितनी भी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है वो फ्यूचर में पब्लिक हेल्थ, मतलब ये नहीं कि जितनी भी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है सब गलत है, बट इट इज इंक्रीजिंग द वल्नरेबिलिटी ऑफ पब्लिक हेल्थ. पब्लिक हेल्थ की वल्नरेबिलिटी बढ़ा रही है. ओके, लेट्स सी हाउ. देखो, तो इसको कहते हैं राइटर डिसइक्विलिब्रियम, यानी कि इकोलॉजी और इकोनॉमी जो है डिसइक्विलिब्रियम में. इकोनॉमी इकोलॉजी को खराब कर रही है. ठीक है, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ इकोलॉजी, वो फुलफिल नहीं हो रही. ओके, और कोविड पैंडेमिक इज वन ऑफ द रिजल्ट. आपको पता है इतने सारे एफर्ट्स, जो भी ह्यूमन टेंडेंसीज रही हैं, बी इट डिफॉरेस्टेशन, बी इट एनक्रोचिंग इनटू नेचुरल इकोसिस्टम, बी इट एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन. ओके, और अभी तो ऊपर से आर्म्स प्रोलिफरेशन, वेपन्स प्रोलिफरेशन, ये सब चीजें क्या कर रही हैं, दीज थिंग्स आर इम्पैक्टिंग इकोलॉजी एंड ब्रिंगिंग अ डिसइक्विलिब्रियम, ये राइटर कह रहे हैं. ठीक है, तो फंडामेंटल इफेक्ट, यानी कि कोविड का कोर कहाँ जाता है, कोविड का कोर कहाँ पे जाता है, इकोलॉजिकल डिसइक्विलिब्रियम. कैसे, आप कोई भी ऐसा पैंडेमिक देख लो, आप यू गो बैक टू टाइम्स ऑफ इबोला और यू गो बैक टू टाइम्स ऑफ अदर वायरसेस. ये जो भी वायरस प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं, क्योंकि इकोलॉजिकल डिसबैलेंस है ना. अब आप वुहान में कहीं पे जहाँ पे कोविड एक्चुअली शुरू हुआ, वहां पे क्यों शुरू हुआ, स्टार्ट तो ये एनिमल्स से हुआ ना. आपको पता है वहां पे दे हैव अ लाइव एनिमल्स की मार्केट है प्रॉपर, है ना. तो इट इज सेड दैट इट स्टार्टेड समवेयर फ्रॉम देयर. सो बिकॉज ह्यूमंस आर
exploiting the ecology at a very high scale. Due to that, all these things are happening. तो फाइनली राइटर कहते हैं कि वी नीड टू फोकस ऑन 3 E's. व्हाट आर द 3 E's? योर एवोल्यूशन, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट. कैसे इन पे फोकस करना है? हमें फोकस इसलिए करना है क्योंकि ऑल्दो वी नो दैट वी हैव टू एक्सपैंड आवर इकोनॉमी, ओवर एंड अबव वी हैव टू इंश्योर दैट एग्रीकल्चर, हेल्थ और एनवायरनमेंट, ये तीनों चीज़ों पे मेन फोकस रहे, क्योंकि एग्रीकल्चर और हेल्थ और एनवायरनमेंट मेन चीज़ें हैं जो आपकी पब्लिक हेल्थ को डिटरमाइन करती हैं. ठीक है, ये मेन चीज़ें हैं जो आपकी पब्लिक हेल्थ को डिटरमाइन करती हैं. ओके फाइन, मूविंग अहेड. ओके, देयर आल्सो नाउ रोबस्ट एविडेंस टू शो दैट हाउ एयर पॉल्यूशन एक्सैसरबेट्स द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19. ये थोड़ा फैक्चुअल बेसिस पे राइटर बात कर रहे हैं, विच इज एक्चुअली ट्रू ऑल्सो. राइटर इज सेइंग, आप देखो दिल्ली का केस देख लो, यू सी द केस ऑफ दिल्ली. दिल्ली में क्या हो रहा है? अक्टूबर से, सिंस अक्टूबर देयर हैज बीन अ राइज इन नंबर ऑफ केसेस ऑफ कोविड. क्यों? क्योंकि दिल्ली में हर अक्टूबर में पॉल्यूशन बढ़ जाता है, आपको पता है, स्टबल बर्निंग के इशू से, और व्हेन एवर विंटर इज अप्रोचिंग तो दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ जाता है, राइट? ओके, सो अभी जहां पे 4,000 5,000 केसेस आ रहे थे, द केसेस इन दिल्ली हैव इंक्रीज टू 7,000 प्लस. ठीक है, 7K प्लस केसेस हो गए हैं दिल्ली में. सो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं कोविड का इम्पैक्ट हैज बीन एक्सैसरबेटेड, यानी कि बढ़ गया है और भी खराब हो गया है कोविड का इम्पैक्ट ड्यू टू एयर पॉल्यूशन. ठीक है, दिस इज व्हाट राइटर इज सेइंग. बाकी अदर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स जैसे कि एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, केमिकल कंटामिनेशन, डिफॉरेस्टेशन, वेस्ट जनरेशन, ये सब ही कहीं ना कहीं पब्लिक हेल्थ को खराब करते हैं. कैसे? सिंपल सा लॉजिक है. एयर पॉल्यूशन आपकी हेल्थ को खराब कर ही रहा है, आपको पता है. आपके जो व्हीकल्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, आपकी हेल्थ को खराब कर रहे हैं. वाटर पॉल्यूशन, आपका काफ़ी स्टेट्स में आर्सेनिक पॉल्यूशन है, या फिर जो भी इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट है वाटर में जाता है, नदियाँ गंदी हो रही है, यमुना देख लो, गंगा देख लो, दीज रिवर्स आर बीइंग कंटामिनेटेड, इम्पैक्टिंग पब्लिक हेल्थ. ठीक है, ओके. केमिकल कंटामिनेशन, अगेन इंडस्ट्रियल वेस्ट इम्पैक्टिंग पब्लिक हेल्थ. ओके, देन लैंड डिग्रेडेशन, आपके जो लैंडफिल्स हैं, जितने ज़्यादा लैंडफिल्स, जितना ज़्यादा वेस्ट जनरेशन, उतने ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उतनी ज़्यादा डिसीजेज. ठीक है, अगेन इम्पैक्टिंग पब्लिक हेल्थ. तो ये सारी इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स एक्चुअली ओवर एंड अबव जितनी भी एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं ड्यू टू ह्यूमन एफर्ट्स, वो घूम फिर के दे आर इम्पैक्टिंग ह्यूमंस ओनली. ठीक है, impact on public health is what? Impact on humans. Okay, so this is what writer is saying, that it is a complete cycle of what you sow, so shall you reap, right? वही वाला cycle है. ठीक है, so writer says that the traditional grow now pay later model. अब ये grow now pay later model क्या है? ठीक है, ग्रो नाउ पे लेटर मॉडल का मतलब है कि आप अभी जितनी भी इकोनॉमिक ग्रोथ कर लो और बाद में यू कॉम्पनसेट फॉर दैट. ओके, तो राइटर सेज दिस मॉडल इज अ वेरी ट्रेडिशनल मॉडल एंड इट कैन नॉट बी यूज्ड इन लॉन्ग टर्म. ठीक है, बिकॉज नाउ इज दिस टाइम देन वी हैव टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी. ऑल राइट, सो क्लाइमेट चेंज इज अ रियलिटी दैट वी हैव टू एक्सेप्ट. ओके, सो बेसिकली क्या इशू है कि अभी तक जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं या पॉलिटिशियंस हैं, देयर कुछ साल पहले तक, अबाउट 5 to 6 years ago, some of the experts and leaders were not accepting that climate change is happening. Even Trump today is not accepting, है ना? तो ट्रम्प की जो एग्जिट है पैरिस मीट से, which shows the people are not accepting that climate change is actually happening. But राइटर इज सेइंग कि आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि मॉनसून की प्रॉब्लम है या फिर कुछ अदर क्लाइमेटिक इशू की प्रॉब्लम है. द होल प्रॉब्लम इज अ लार्जर बिग प्रॉब्लम विच इज क्लाइमेट चेंज, जिनकी वजह से आपकी मॉनसून वेगरीज हो रही हैं. ओके, सो वी कैन नॉट आर्ग्यू अबाउट अनसर्टेनिटीज, वी हैव टू एक्सेप्ट द रियलिटी. दिस इज व्हाट राइटर इज सेइंग. देन ही इज सेइंग दैट कि एक रिपोर्ट आई थी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज की, क्या नाम था, असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर इंडियन रीजन. ओके, दिस रिपोर्ट बेसिकली टॉक्स अबाउट इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज especially in India. ठीक है, in every domain. ठीक है, so this is something we need to discuss upon. Then there needs to be a scientific understanding. अब ये बहुत अच्छा point है. I think you can use this in your GS3 answers. Okay, for environment topic. This point is saying that एक चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है कि जब भी हम किसी बात का solution निकालते हैं, किसी प्रॉब्लम का जब हम solution निकालते हैं, so we should see कि वो जो solution है वो आगे भी एक तरह से सॉल्यूशन के तौर पे ही एक्ट करे. ओके, बिकॉज इट हैज़ बीन सीन कि हम शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस निकाल लेते हैं और आज जो सॉल्यूशन लग रहा है वो कल को प्रॉब्लम बन जाता है. ओके, लेट्स सी हाउ. राइटर इज सेइंग
that a solution at one point becomes a problem at another point. जैसे कि he gives example of HFCs. HFCs हमने क्या लिया था? HFC was the solution of eliminating CFCs. हमने बोला था कि CFCs को हम eliminate कर देंगे because CFCs are ozone depleting substances, so we will replace CFCs with HFCs. But when we actually did that, we realized that although HFCs जो हैं ozone deplete नहीं करते, but वो क्या करते हैं? They have a huge global warming potential. What is global warming potential? That, you know, carbon dioxide is a greenhouse gas. कार्बन डाइऑक्साइड हीट ट्रैप करती है और टेम्परेचर्स इंक्रीज करती है, ठीक है. सो कार्बन डाइऑक्साइड से 1000 टाइम्स ज़्यादा हीट ट्रैप करने का पोटेंशियल है. हीट ट्रैप करने का पोटेंशियल है किसका? HFCs का. तो दिस इज व्हाट राइटर सेइंग दैट ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल इज 1000 टाइम्स दैट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ HFCs. तो फिर जो HFCs हम लाए थे एज सॉल्यूशन, इट बिकेम अ प्रॉब्लम अगेन. इसको फिर से रिप्लेस करना पड़ा एंड वी हैड टू गेट HCFCs. ठीक है. तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बिकॉज वेन एवर वी आर कमिंग अप विद अ सोल्यूशन वी शुड मेक श्योर कि हम उसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस को एस्टिमेट करके ही वो सोल्यूशन लाएं. ये समृति एडिटोरियल क्लास डेली होती है, नॉट ऑन संडेज, सैटरडे संडेज. ओके, ठीक है, फाइन. सो दिस इज वन थिंग. अब आप you can take many examples of this thing, that so many things which came as solution but became problem. For example, nuclear energy. ठीक है, nuclear energy was thought of to be a solution of non-fossil fuel based energy, है ना. हमने सोचा था कि कोल नहीं यूज करेंगे, न्यूक्लियर एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, बट अगेन वी अंडरस्टूड कि काफ़ी प्रॉब्लम है. अब सारी कंट्रीज जो है न्यूक्लियर एनर्जी छोड़ के बाकी एनर्जी सोर्सेज की तरफ जा रही हैं. ठीक है, टेक एग्जाम्पल ऑफ जापान, क्योंकि न्यूक्लियर वेस्ट कहाँ आप डिस्पोज ऑफ करोगे. देन टेक एग्जाम्पल ऑफ ई वेस्ट. इतना ज़्यादा देर इज़ अ ह्यू एंड क्राई अबाउट मोर एंड मोर phones manufactured, more and more electronics being manufactured, but where will you dispose the e-waste? Okay, then another example of polythene ले लो. polythenes आए तो solution के तौर पे थे ना. now they have become a very big problem today, right? So this is what writer is saying, that we need a scientific understanding for what we are bringing as an innovation or a solution which can act as a problem years from now. ठीक, so this is one thing. Then writer talks about another dimension about aiming for carbon neutrality. अब ये carbon neutrality क्या है? Before understanding, you should understand what actually is carbon neutrality. See, read this. Carbon neutrality is when your emission, carbon emission, यानी कि जितना आप emit करते हो, that is equal to absorption, कि उतना ही आप absorb कर सकते हो. ठीक है, emissions by balancing carbon dioxide emissions with removal or simply eliminating, कि आप absorb कर रहे हो या eliminate कर रहे हो, one and the same thing. Okay, that more as much as if you are emitting 100 tons of carbon, you are also absorbing or eliminating, or what we call carbon sequestration, आप कर रहे हो हर 100 ton की ही. ठीक है, so that should be equal likewise. ठीक है, this is what we call carbon neutrality. Okay, so what writer is saying in this regard? Writer is saying that in 2018 California was first to commit itself. California said that it will become carbon neutral by 2045. ठीक है, 2019 में यूरोपियन यूनियन ने बोला कि 2050 तक वो कार्बन न्यूट्रल बन जाएंगे. ठीक है, चाइना ने बोला 2020 में कि 2060 तक कार्बन न्यूट्रल बन जाएंगे, जबकि ये तो बहुत ही फारफेस्ट गोल है ना. 2050 या 2060, आप अभी से कितना 30-40 ईयर्स बाद की बात कर रहे हो. अभी क्या कर रहे हो आप, राइट? आई मीन राइटर सेइंग दैट व्हाट आर योर स्टेप्स बीइंग टेकन टुडे इन दिस रिगार्ड. ठीक है, एंड ओवर एंड अबव इंडिया ऑल्सो नीड्स टू टेक स्टेप्स फॉर बिकमिंग कार्बन न्यूट्रल इन लॉन्ग टर्म. एंड ऑल्सो वी हैव ऑलरेडी गिवन the nationally determined contributions for that. हमने बता दिया कि हम लोग क्या करेंगे. we will increase our tree cover, we will reduce fossil fuel based energy. ठीक है, we will increase 40%, यानी कि जो total energy हम produce करते हैं, total electricity produce करते हैं, 40% of that will come from renewable sources. तो ये भी हमारा जो one of the target है by 2030.
right? So these are the steps India has taken for becoming carbon neutral in future. So writer finally is saying कि देखो economy तो बढ़ेगी ही, economy will become a 5 trillion economy in few years, but just for that you cannot surpass the larger goal of becoming carbon neutral nation, ठीक है? So you have to focus on larger goals. 5 trillion economy बढ़ेगी ही, economy expand होगी ही over the period of time, but we cannot forget larger goals like this. Okay, so for this what we need technological innovation, we need better technologies, we need more green technologies what we call. Okay, and renewables को ज़्यादा exploit करने की ज़रूरत है, because अब non renewable पे जितना कम reliance होगा उतना ही better होगा. Fine. So conclusion में finally writer ये कहते हैं that GDP growth must without doubt revive. GDP growth revive करना ही है, लेकिन हमेशा there is a chance for innovation जिसमें आप balance create कर सको economy और ecology में, and this is where the idea of green methods come. ठीक है, green methods of agriculture, green methods of energy production, green method यानी कि ecologically sustainable methods of energy production, ठीक है, better methods of manufacturing, okay, waste management के methods, all these methods come into play in this scenario. So India should show to the world how the measurement of economic growth can take place while taking into account both ecological pulses and pluses and minuses. ठीक है, यानी कि ecology के को ध्यान में रखते हुए कैसे इकोनॉमी को ग्रो करना है, इंडिया कैन बी अ रोल मॉडल फॉर होल ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस सेशन. दीज टू आर्टिकल्स दे हैड सम गुड पॉइंट्स जो आप अपने आंसर्स में यूज कर सकते हो. सो दिस वाज अबाउट टुडेज डिस्कशन. अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन सब्सक्राइब टू Gradeup Super if you want to take the live courses and mock test of UPSC exam along with EPFO exam. Okay, you can take it for 24 months, 12 months or 6 months as per your requirement. Apart from that, we have these ongoing courses on the Gradeup app, so please install the Gradeup app and subscribe to these ongoing courses which are really useful for your preparation. Hindi mein bhi available hai, English mein bhi available hai, and these are some upcoming courses on the Gradeup app you can install and join likewise. ठीक है, so thank you so very much for joining in guys. I hope you like the session. Please like कर दो इसको फटाफट से और share और subscribe करना मत भूलना. Okay, till then have a great day and let's meet tomorrow at same time 2 PM on Gradeup IAS channel. Fine, thank you so much, bye bye.